Hello, dear candidates. Today we are going to know parity and welfare economics and the conditions required to prove the concept. So, concept of Pareto, parity and efficiency, or parity and optimality, the concept of welfare economics by Pareto. Sir Pareto gave the concept of welfare economics. According to him, if due to policy measure one is benefited and none is loser, then welfare is maximized. So the concept says if one gets better off and none gets worse off, then it is welfare or social welfare. Suppose due to policy measure, if due to road provision or development, there are two individual A and B, and due to this road provision, A starts earning 400, that is more 200 as compared to his previous earning, and B remains at the same position, that is he was earning 200 already and now again he is earning 200. So here A gets extra benefit but B stays at the same position, that is 200. So one is benefited but the other is not the loser. His position is same. This condition according to Pareto is the Pareto efficiency or optimum. In diagram, we can take this statement as here along OX axis. So along OX axis we have taken A's welfare, along OY axis we have taken B's welfare. That means A's benefit and B's benefit. O is the original position and PP is the production possibility curve. Here H is the initial position for measuring the benefits. If we move from the position H towards points J and point R, R shows that B is benefited, J shows that A is benefited, but at J or R, one is gainer but other is not loser. For example, at point R, B is gainer but A is not loser because A's position is same original, that is H. But if the policy or the distribution makes the gains like this, the shift is from H to B. Here what happens? B getting more benefit from H towards B, but A getting in backward direction. That is A is moving from H to some position, we can say K level, H to K or L, suppose L level. So here A's welfare is reduced. So in such situation Pareto does not आंसर, यहाँ पे पेरेटो अपना प्रॉब्लम को का आंसर रिप्लाई नहीं करते हैं. इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको हम लेटर ऑन वी विल नो. सो दिस इज in here at point R and J, these points are parity and optimum or parity and efficiency, but at point B where जहाँ पे क्या हुआ कि एक को लॉस हुआ दूसरे को फ़ायदा हुआ, किससे? किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, किसी भी रोड की कोई फैसिलिटी से, गवर्नमेंट की फैसिलिटी से या किसी प्रोजेक्ट से. तो यहाँ पे पेरेटो के पास कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है.
सो इसके लिए एक नया कंसेप्ट जिसको कल्डर हिक्स का प्रिंसिपल कहते हैं. सो दिस इज व्हाट हेयर वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पैरिटी एंड ऑप्टिमम कि अगर जे और आर पे पोजीशन होती है दैट इज पैरिटी एंड एफिशिएंसी. सो पैरिटी के एफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए वी आर हैविंग मार्जिनल कंडीशन. दीज आर नॉन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस. सो देर आर दीज कंडीशंस आर एज. पहली कंडीशन क्या है? एफिशिएंसी इन कंजप्शन. अब we are talking of welfare, and welfare means we are talking of benefit of the society, benefit of the individuals, and that means efficiency is there. And efficiency in what? In production, in consumption, in distribution. So when we are talking of consumption, it means marginal rate of substitution between what? Between two goods say X and Y for all the consumers should be same. And this can be explained with the help of this type of diagram where we are having two origin. This is called Edgeworth box. So इसको हम Edgeworth box से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस डायग्राम को. और ये डायग्राम में यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो इस डायग्राम में एक हमने ये पोजीशन यहाँ से लिया है, वन डायग्राम में यहाँ पे इस तरह से लिया है और दूसरा ओरिजिन यहाँ से लिया है. सो यहाँ से एक आदमी का बेनिफिट है. यहाँ से अगर एक आदमी ओ ए है और यहाँ से दूसरा आदमी है ओ बी. और सपोज करते हैं कोई इनिशियल पोजीशन ये इस तरह से है, ये कोई इनिशियल पोजीशन है. इसको अगर हम इधर ज्वाइन करें और इधर ज्वाइन करें तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये वाले का अगर यहाँ पे दो गुड्स हैं, इस साइड ये वाई गुड है, इस साइड एक्स गुड है, यहाँ से वाई एक्सिस पे वाई गुड है, यहाँ पे वाई गुड है, इस साइड ये एक्स एक्स होगा, यहाँ पे वाई वाई गुड होगा. सो इस पोजीशन से हमें पता चलता है कि ओ का इस वाले का यहाँ पे एक्स कितना कंज्यूम कर रहा है, वाई कितना कंज्यूम कर रहा है. और यहाँ से पता चलता है बी वाला एक्स कितना कंज्यूम कर रहा है, वाई कितना कंज्यूम कर रहा है. सो इनिशियल पोजीशन ये है. इनिशियल पोजीशन से अब यहाँ पे ये जो इंडिफरेंस कर्व जा सकता है, यहाँ से मूवमेंट हो सकती है, यहाँ से मूवमेंट हो सकती है. सो क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पे वी आर हैविंग सेम सेटिस्फैक्शन. सो अगर हम अगर कर्व इस तरह से जाता है, अगर कर्व इस तरह से जाता है तो यहाँ से ए का इम्प्रूवमेंट है, और इस तरफ जाता है, अगर इस तरह से जाता है तो यहाँ से दूसरे का मूवमेंट है. सो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ से ये मूवमेंट जाती है, इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट जो लिया था. और अगर इस साइड को मूवमेंट जाती है तो एक का इम्प्रूवमेंट है बट दूसरा पिछली पोजीशन पे ही है एट द सेम प्रीवियस लेवल. और यदि इफ मूवमेंट अकर्स यहाँ पे इस दिस साइड तो इस वाले का मूवमेंट है इस तरह से, इस वाले का इम्प्रूवमेंट या इस वाले का इम्प्रूवमेंट होता है बट दूसरे का लॉस नहीं होता है. सो सेम इज रिफ्लेक्टेड इन दिस फिगर दैट इफ मूवमेंट अकर्स towards from OB towards this side, then this is the improvement for individual B, and if it occurs towards this side, then it is the improvement for the individual A. So accordingly यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस पोजीशन सेम रहेगी. यस, दूसरे के लिए इम्प्रूवमेंट आएगी क्योंकि यहाँ पे ये जो इनिशियल पॉइंट है दिस इज इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट से यहाँ से रास्ता जा रहा है यानी कि इंडिफरेंस कर्व जा रहा है. इस साइड मूवमेंट होती है तो इसका इम्प्रूवमेंट इस जाती है. दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो जिस रेट में एक गुड दूसरे के लिए एक्सचेंज होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल, बिटवीन टू गुड्स, दैट इज बिटवीन टू गुड्स फॉर ऑल. एक कंज्यूमर अपनी मर्जी से दो गुड्स को एक्सचेंज कर रहा है तो वो क्या है, दैट इज सेम. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. और एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, वहाँ का अगर कंजप्शन था तो यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन क्या है?
वहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। वहाँ पे कंज्यूम कर रहे थे तो कंज्यूम क्या करते हैं हम, 1 गुड, 2 गुड, 3 गुड। तो क्योंकि यहाँ पे ये 2 गुड्स लिए गए हैं इसलिए हमें 2 गुड लिए हैं। दो यहाँ पे 2 गुड्स को प्रोड्यूस करना है, किसने करना है, किसी फैक्टर ने करना है, लेबर या कैपिटल ने। सो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रही है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई। So again, यहाँ again we have taken some initial, that जो अर्थ बॉक्स and some initial position is given, you that we join this will show कि हम कितना लेबर और कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। और लेबर एंड कैपिटल का टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी कि दोनों के बीच में एक्सचेंज रेट क्या है, अकॉर्डिंगली इट विल बी डिसाइडेड। इम्प्रूवमेंट अगर इस साइड होगा तो एक का, इफ मूवमेंट अकर्स टुवर्ड्स, अगर मूवमेंट इस साइड जाता है, मूवमेंट अगर इस साइड जाता है तो एक का इम्प्रूवमेंट है बट दूसरे का लॉस नहीं है। और मूवमेंट इस साइड जाता है तो एक का मूवमेंट, एक का इम्प्रूवमेंट है, दूसरे का लॉस नहीं है। अगेन दिस इज पैरिटी एंड ऑप्टिमम। सो फर्स्ट कंडीशन इज इन प्रोडक्शन, इन कंजप्शन, एंड सेकंड इन किस में है, प्रोडक्शन में। सो लेट वी गो टू थर्ड। दिस इज थर्ड कंडीशन क्या कहती है, फैक्टर प्रोडक्शन मिक्स। फैक्टर प्रोडक्शन मिक्स का क्या मतलब है, भाई फैक्टर ने बनाना है, क्या बनाना है, गुड टू प्रोड्यूस, फैक्टर हैज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स and services. So factor is creating something. So factor products mix simply mean marginal productivity of the factor, and marginal productivity of the factor should be same for all the firms. That means अगर लेबर का एफिशिएंसी क्या है, लेबर का एफिशिएंसी एक फर्म में क्या है, दूसरी फर्म में भी, अगर पूरे देश में तीसरी फर्म में भी सेम रहता है तो उस चीज़ को हम एफिशिएंसी कहते हैं कि यस एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रहा है और ये सब फर्म के लिए अगर इक्वल है तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर प्रोडक्ट्स मिक्स। और इसको डायग्रामेटिकली हम इस तरह से, यहाँ पे ये पॉसिबल है कंडीशन कब, जब व्हेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स ऑफ टू कर्व्स आर touching in such a way that total production of these factors, here this factor is labor, and suppose it is producing some good, and this total production getting maximized। यहाँ पे गुड वाई का प्रोडक्शन अगर हो रहा है किसी फैक्टर से तो ये टोटल प्रोडक्शन ME प्लस EN it is getting maximized. This is, so first was consumption, then production, then factor product mix, that is marginal productivity. Fourth condition is product substitution, and product substitution is simply what it means, marginal rate of substitution between two goods on the one hand should be equal to marginal rate of transformation. Number one, that you are exchanging goods X and Y should be equal to, you are transforming the resources from one good to another. So rate of transformation for the society, for the community should be equal to marginal rate of substitution. And this is efficient when this condition happens, and this ये पॉसिबल कब होगा, व्हेन सोसाइटी का, दैट मीन्स सोसाइटी का प्रोडक्शन और सोसाइटी का कंजप्शन, यानी कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, सोसाइटी प्रोड्यूस क्या कर रही है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शुड बी टेंजेंट टू द प्रोडक्शन, दिस सोशल कंजप्शन कर्व, एंड एज शोन इन द फिगर वेयर देयर इज कंजप्शन पॉइंट, that is efficiency, here means transformation, and substitution rates are equal. And fifth is specialization, and specialization is simply you are specializing, एक फर्म को X बनाना है, दूसरी को Y, तीसरी को तीसरा गुड, चौथी को, किसी को स्टील बनाना है, किसी को सीमेंट प्रोड्यूस करना है, किसी कोई कपड़े में स्पेशलाइज करता है, कोई गाड़ी में स्पेशलाइज कर रहा है, तो डिफरेंट फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट थिंग्स, सो दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। एंड हियर द ट्रांसफॉर्मेशन रेट, marginal rate of transformation between X and Y, that is X is being transformed to Y, that you are specializing in one good, and this condition is passed, this marginal rate of transformation between X and Y should be same for all the firms. That means if you are taking one good and you're producing one good, you should be efficient in that, and another firm producing another good should be efficient in that. So two firms together producing X
production max should be maximized, and another two farm producing good, why production should be maximized. This is passive. Specialization is can be explained when total production of per both goods is maximized, and this happens when production possibility curve are tangent in such a way that production of X and production is Y, here shown in Edgeworth-Bucks diagram, is maximized. MN line is and for X good, and another second line is for this line, this one, this line is for Y, and this line is for X, this is for X, and this is for Y, and so on. We are moving to next condition, that is allocation of factor time. Now what is factor time? Factor time allocation is between factor is for leisure and work, कि आराम करना है भाई, आपको आराम भी करना है और काम भी करना है, तो काम और आराम के बीच का बैलेंस इक्वल किसके होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन जो काम कर रहे हो, काम करते करते आप क्या कोई चीज़ बना रहे हो, यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेजर एंड वर्क should be equal to marginal rate of transformation between the working hours and the product you are producing. और ये इसका बैलेंस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन का बैलेंस, ये पॉसिबल है, ये एफिशिएंसी कब आएगी? जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इकॉनमी में टेंजेंट हो, अगेन एक सोशल इंडिफरेंस कर्व। सो यहाँ पे सोशल, जब ये टेंडेंसी पॉइंट होगा, उस टेंडेंसी पॉइंट पे ये कंडीशन अगेन मीट होगी कि यस, ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है that is they are equal. So next condition and the last marginal condition is efficiency in the allocation of asset. And allocation of assets is what? This portfolio management. भाई क्या है, आप जॉब भी करते हैं, आप साइड बिजनेस भी करते हैं, इस तरह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? बॉन्ड में कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, शेयर मार्केट एफडी में डाल रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। सो यहाँ पे सिंपल इसका मीनिंग क्या आएगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन, आज अगर सेव करोगे तो आज का कंजप्शन कम हो जाएगा, अगर कल के लिए सेविंग करते हो तो कल का कंजप्शन बढ़ेगा। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर इनकम, या प्रेजेंट कंजप्शन एंड फ्यूचर कंजप्शन शुड बी सेम फॉर द इंडिविजुअल। भाई आज का कंजप्शन आप प्रेफर कर रहे हो, कल के लिए प्रेफर कर रहे हो, आज और कल में बैलेंस, या सिंपली हम कहें इसको, बैंक से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया जाता है वो किसके बराबर होना चाहिए? जिस बिजनेस में वो लोन डाला वहाँ से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का रेट भी उतना ही होना चाहिए, कम से कम बैलेंस होना चाहिए। सो सिंपली इट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजप्शन शुड बी सेम फॉर एनी टू इंडिविजुअल्स and or for firms, and lending rate should be equal to marginal productivity of capital for capital borrowed by the firms. And this is shown यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो this is if we cut the consumption, present consumption, if it is kept here, then फ्यूचर कंजप्शन राइजेस। दिस इज, ये इतनी सारी है फ्यूचर कंजप्शन। और अगर प्रेजेंट कंजप्शन को यहाँ ले लिया ओपी पे, तो फ्यूचर कंजप्शन हमारी घट जाएगी, ये OC1 पे आ जाएगी। सो ये बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए? जब ये बैलेंस मेंटेन किया जाए तो ये अगेन इकॉनमी में एफिशिएंट डिसीजन आएगा, और दैट इज अगेन पॉसिबल जब आपका प्रोडक्शन कर्व आपका सोशल इंडिफरेंस, आपका इंडिफरेंस कर्व के साथ टच करता है। सो बैलेंस यहाँ पे E3 पे ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका इक्विटी आता है जहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में बैलेंस बनाते हो। सो दैट इज द हाउ टू मेंटेन द बैलेंस। दिस इज द 7th मार्जिनल कंडीशन। एंड so these were first order condition. Second order condition is for parity and efficiency, that all the indifference curves should be convex to origin, and all the PPC's production possibility curve should be concave to the origin. And you have seen कि जो भी हम
इंडिफरेंस कर्व्स होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, कन्वेक्स, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होगा वो क्या होगा, कनकेव होगा। तब जाके ये कंडीशंस हम प्रूव कर पाएंगे या एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो टोटल ऑर्डर कंडीशन क्या है? टोटल ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन आर required but not sufficient. So it becomes sufficient only when total order conditions are met. और टोटल ऑर्डर कंडीशन कहती हैं कि एक बार इक्विलिब्रियम आ गया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि भाई दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या होगा, एक का बेटर ऑफ दूसरे का वर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सो वंस द इक्विलिब्रियम अटेन्ड इट कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड without making some better and others worse off. So this is all about parity and efficiency. Thank you one and all.